dear children, a very warm welcome to the English class. We are having this class after a week. Last class was on 14th September, and after that from 15th onwards you had your evaluation 1 test. I'm sure your test went off well. This was your first exam in Army Public School, so it may be that you faced little bit of problems, but I'm sure सबने अपने टेस्ट अच्छे से दिए होंगे और सबके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, because I know you all are very good children. So to continue with the lesson, we were doing before this test, we were doing lesson number 6, which was Neha's birthday invitation. Neha's birthday invitation. If you do not remember what the lesson was about, lesson किसके बारे में था, lesson में क्या था, so I will just revise the lesson once. एक बार lesson का मैं revision कर दूं and then we will proceed. Okay? The lesson was about this lesson is about Neha's birthday invitation. Neha sends an invitation message to her friend Avni. नेहा अपनी फ्रेंड अवनी को एक अपनी बर्थडे का इनविटेशन भेजती है. बट व्हेन अवनी गॉट द इनविटेशन, शी वॉज वेरी कंफ्यूज्ड. शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली. जब अवनी को वो इनविटेशन मिला तो बहुत कंफ्यूज हो गई. उसे समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली उस इनविटेशन में क्या लिखा हुआ है. देन शी वेंट थ्रू इट अगेन. पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, वाई दिस इन्विटेशन इज सो कंफ्यूजिंग. देन शी नोटिस दैट देयर वर नो पंक्चुएशन मार्क इन द इन्विटेशन. जो इन्विटेशन था उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क था ही नहीं. इट वॉज लाइक वन कंप्लीट बिग सेंटेंस, नॉट इवन सेंटेंस, बिकॉज when we start a sentence, we always start it with capital letter and end it with a full stop. And if it is a question, then we put question mark. But there was no full stop, no comma, no question mark, no capital letter. And the invitation which Neha sent read like, जो नेहा ने जो invitation भेजा था अवनी को, वो कैसे लिखा हुआ था उसने? डियर अवनी, माई बर्थडे इज ऑन 25th July. प्लीज कम ड्रेस्ड एज अ वेजिटेबल फेरी. देयर आर मेनी प्राइजेस and lots of games. My mummy is baking a big cake and making some yummy snacks. Papa has invited a clown as well. We will have fun together. Do not miss it. Be there at 5 p.m. Love, Neha. So it was like it was continuous. मतलब कहीं comma, full stop, कहाँ punctuation है, क्या है, कुछ भी नहीं था. So that is why Avni was very confused. फिर जब उसने उसको अच्छे से देखा तो उसको समझ में आया कि नेहा ने पंक्चुएशन मार्क्स लगाए ही नहीं थे. शी हैड फॉरगॉटन टू पुट पंक्चुएशन मार्क्स. एंड पंक्चुएशन मार्क लगाने के बाद इन्विटेशन कैसा दिखना चाहिए, दैट इज रिटन हियर. डियर अवनी, कॉमा. कॉमा मीन्स वी हैव टू पॉज फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, मे बी हाफ अ सेकेंड. ठीक है? Dear Avni, my birthday is on the 25th July. Full stop. That means the sentence ends. Please come dressed as a vegetable fairy. Again, sentence khatam hua. Full stop is there. There are many prizes and lots of games. बहुत सारे prizes हैं और बहुत सारे games हैं. Again, one sentence completes. एक sentence khatam hua and there is a full stop. My mummy is baking a big cake and making some yummy snacks. Papa has invited a clown as well. We will have lots of fun together. Do not miss it. Be there at 5 p.m. Love, Neha. Now the invitation is proper. Abhi it is proper invitation with full punctuation marks. That means full stop, comma.
जहाँ कैपिटल लेटर यूज करना है, एवरीथिंग इज एट द प्रॉपर प्लेस. ओके. देन नेहा गेव अवनी हर एड्रेस ऑल्सो, बिकॉज विदाउट एन एड्रेस यू कैन नॉट रीच अ न्यू प्लेस. अगर किसी जगह के बारे में आपको नहीं पता है और आपको अगर बोला जाए कि यहाँ पे आपको आना है, सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव नॉट सीन द आर्मी पब्लिक स्कूल, कहाँ पे है, फर्स्ट टाइम आप वाराणसी में आए हो, फर्स्ट टाइम आपने नहीं देखा है, एंड इफ समबडी सेज कि हाँ स्कूल चले जाओ, सो हाउ विल यू गो, जब तक कि आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली है कहाँ पे. ठीक है. सो नेहा ने अवनी को अपना एड्रेस भी दिया. हर एड्रेस वॉज नेहा जैन, सूर्या टावर्स, हाउस नंबर 17, MG रोड, मेरठ 250001 यूपी. इसमें मैंने बताया सबसे पहले नेहाज नेम इज देयर, फिर जिस बिल्डिंग में वो रहती है, मे बी द नेम ऑफ द बिल्डिंग इज सूर्या टावर्स, देन हर हाउस नंबर इज देयर, फिर वो बिल्डिंग किस रोड पे है, व्हाट इज द लोकेशन, दैट इज देयर, द नेम ऑफ द सिटी इज देयर, उसका पिन कोड है, पिन कोड भी क्या होता है, आई हैड टोल्ड, मैंने एक्सप्लेन किया था, एंड देन यूपी. ठीक है. सो दिस इज द लेसन. देन सजेस्ट अवनी अ नाइस कॉस्ट्यूम टू ड्रेस अप लाइक अ वेजिटेबल फेरी. कॉस्ट्यूम का मीनिंग बुक में दी हुई है. द मीनिंग ऑफ कॉस्ट्यूम इज गिवन एज ड्रेस, बट मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगी. ड्रेस कैन बी एनीथिंग. ठीक है. आई एम गोइंग टू बाय अ ड्रेस फॉर माई सेल्फ फॉर माई बर्थडे. अभी होली आने वाली है, होली के लिए मैं ड्रेस लेने जा रही हूँ. बट कॉस्ट्यूम इज समथिंग व्हेन विच वी वेयर फॉर सम स्पेशल पर्पस. जैसे आप किसी स्किट में हो, किसी प्ले में हो, डांस में हो, कोई स्पेशल आपको ड्रेस पहननी है, सो दैट इज कॉस्ट्यूम. कॉस्ट्यूम ऑफ एनी बर्ड, कॉस्ट्यूम ऑफ एनी फ्लावर, कॉस्ट्यूम ऑफ एनी एनिमल. ठीक है. किंग का कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम ऑफ एनी गॉड, दैट इज कॉस्ट्यूम. नाउ 3 costumes are given and you have to suggest Avni a nice costume. ठीक है. इसमें से अवनी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम कौन सा होगा. आई एम लाइकिंग दिस फ्रॉक, मुझे तो ये टोमेटो की फ्रॉक बहुत पसंद आ रही है. ठीक है. सो दिस इज द लेसन. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइजेस. वी हैव डन द वाव वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स. स्पेलिंग्स मैंने बता दी थी. आई विल एक्सप्लेन द वर्ड मीनिंग्स वंस अगेन जस्ट एज रिविजन. ठीक है. एक बार वर्ड मीनिंग्स और बता देती हूँ. मैसेज, मैसेज इज समथिंग विच इज रिटन और वर्बल. मतलब मैसेज हम किसी को, हमको कुछ बताना है तो ओरली भी बता सकते हैं एंड वर्बली भी बता सकते हैं. एक मैंने बर्थडे के लिए इनवाइट किया, प्लीज डू कम फॉर माई बर्थडे. फोन पे मैंने बता दिया, या मैंने इन पर्सन आपको बोला. बोल करके किसी को कुछ हम बोलते हैं, दैट इज वर्बल मैसेज, हिंदी में जिसको मौखिक कहते हैं. एंड रिटन मीन्स लिखित, जो हम लिख करके देते हैं. लाइक दिस इन्विटेशन मैसेज इज अ रिटन मैसेज. अगर सिर्फ वर्बली अगर मुंह से बोला होता, सो दैट वुड हैव बीन अ वर्बल मैसेज. यमी मैंने बताया था, यमी मीन्स वेरी टेस्टी, डिलीशियस. देन कंफ्यूजिंग, द इन्विटेशन वॉज वेरी कंफ्यूजिंग. कंफ्यूजिंग मीन्स समथिंग विच इज नॉट क्लियर, जो क्लियर नहीं है, जो समझ में नहीं आ रहा है, विच इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, इज कंफ्यूजिंग. देन पंक्चुएशंस. पंक्चुएशंस आर द मार्क्स लाइक कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क. दीज आर ऑल पंक्चुएशन मार्क्स. दीज आर यूज्ड टू इन्फॉर्म, बताने के लिए कि कहाँ पे सेंटेंस, फ्रॉम वेयर द सेंटेंस स्टार्ट्स. लाइक कैपिटल लेटर जो हम यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पंक्चुएशन काइंड ऑफ. तो कैपिटल लेटर से यूज किया है, स्टार्ट किया है, दैट मीन्स द सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ, सेंटेंस खत्म होता है, वी पुट अ फुल स्टॉप. इससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस खत्म हो गया. ठीक है. हमें यहाँ पे पॉज देना है, बीच में इन बिटवीन अ कॉमा इज देयर, दैट मीन्स वी हैव टू गिव अ स्मॉल पॉज. मतलब बहुत बहुत थोड़ी देर के लिए हमें रुकना है. देन इन्विटेशन. इन्विटेशन इज अ रिटन और वर्बल रिक्वेस्ट टू इन्वाइट समवन. मतलब किसी को इनवाइट करने के लिए जो हम वर्बली, मतलब मुंह से बोल करके या लिख करके जो इनविटेशन देते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं, दैट इज इनविटेशन. जैसे जब शादियां होती हैं, शादी का जब सीजन आता है, तो कितने सारे इनविटेशन कार्ड्स आते हैं. वो सारे क्या हैं, दे आर ऑल रिटन इनविटेशन कार्ड्स. कार्ड मिलते हैं, सो दे आर ऑल रिटन इनविटेशन. ओके. सो टुडे वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइजेस.
children, open page number 56 in your course book, which is English Wordsworth English Reader Book 1. Open page number 56. We will start with comprehension. Like for as इतने अभी तक हमने जितने भी लेसन्स किए, हर एक लेसन में फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑलवेज कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज फर्स्ट it is very important to check that how much have you understood. आपने इसको कितना समझा है. ठीक है, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है, ये चेक करना, ये देखना कि आपने कितना उसको समझा है. ठीक है ना. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन और पोएम. So first is fill in the blanks. In comprehension, exercise A is fill in the blanks. Okay. Now fill in the blanks is words are sentences are given. Words are not given here. यहाँ पे words नहीं दिए हुए हैं. Only sentences are given and अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन, आपको लेसन जितना समझ में आया उसके बेसिस पे आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है. यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑन योर ओन. ओके. फर्स्ट इज नेहा हैज सेंट अवनी अ डैश. अभी नाउ यू टेल मी कि नेहा ने अवनी को क्या भेजा था. नेहा ने अवनी को एक मैसेज भेजा था, इनविटेशन था, इजंट इट. फर्स्ट लाइन ऑफ द लेसन, लेसन की जो फर्स्ट लाइन है दैट इज नेहा हैज सेंट अवनी द फॉलोइंग मैसेज. मतलब नेहा ने अवनी को ये मैसेज भेजा था. सो द करेक्ट वर्ड इज नेहा हैज सेंट अवनी अ MESSAGE message. Second is Neha's birthday was on. नेहा की बर्थडे कब थी. Neha's birthday was on. कब थी नेहा की बर्थडे. It is very clearly written in the message that my birthday is on 25th July. First sentence of the message. So Neha, since Neha is writing the invitation, जो message है वो कौन लिख रहा है. Neha herself is writing that message. That is why it is in first person. My birthday is on. Since Neha is writing the message, that is why she is writing in first person, because वो अपनी तरफ से लिख रही है. तो she is saying, उसने इन्विटेशन में उसने कहा my birthday is on. मेरी बर्थडे 25 जुलाई को है. But here the sentence means Neha's birthday was on. मतलब नेहा की बर्थडे कब थी. नेहा की बर्थडे 25th जुलाई. Neha's birthday was on 25th July. Third is Avni had to dress up as a for the party. अवनी को पार्टी के लिए कैसा ड्रेसअप होना था, क्या कॉस्ट्यूम पहनना था. अवनी हैड टू ड्रेस अप एज अ वेजिटेबल फेरी फॉर द पार्टी. अवनी को पार्टी के लिए एक वेजिटेबल फेरी की तरह ड्रेसअप करना था. चिल्ड्रन, यू राइट दीज वर्ड्स इन योर बुक. पेज नंबर इज 56. Page
26. Complete the sentences in your book. I hope you all have written. सबने लिख लिया? सबने लिख लिया ये words ना? 2 more are there. The first is, next one is Neha's father had invited a for the पार्टी. नेहा के फादर ने पार्टी के लिए किसको इनवाइट किया था? स्पेशली किसको इनवाइट किया था? नेहा's father had invited a clown. Neha's father had invited a clown for the party. Then fifth one is there were many and lots. देखो lots की जगह I have written dolls. And LOTS, lots of for everyone, EVERYONE. Now tell me, there were many and lots of for everyone. क्या थे? There were many prizes, 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 and lots of games for everyone. बहुत prizes थे and बहुत सारे games थे हर किसी के लिए. Okay, so write these 2 words also, children. I hope everyone has written. Now next exercise is B. Let's find out how Neha wants to celebrate her birthday. The words from her invitation are jumbled. Rearrange the words to complete her invitation. अभी we have to see कि नेहा अपना बर्थडे कैसे मनाना चाहती है. That means what has she written in her invitation letter. उसने अपने invitation message में क्या क्या लिखा हुआ है. अभी जो उसने अपने invitation message में whatever she has written, उसके जो words हैं वो jumbled हो गए हैं. Jumbled means mix up हो गए हैं. ठीक है, मतलब जो वर्ड्स का ऑर्डर है दैट इज चेंज, कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड पहले आना चाहिए, कौन सा वर्ड बाद में आना चाहिए, दैट इज चेंज. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, हमें क्या करना है, रीअरेंज द वर्ड्स टू कंप्लीट हर इन्विटेशन. दैट मीन्स हर एक सेंटेंस के वर्ड्स को हमें रीअरेंज करना है. दैट मीन्स वी हैव टू अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर सो एज टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस. मतलब हमें वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है जिससे कि एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए. ठीक है. नाउ द फर्स्ट वन इज माय 25th on July birthday. Now, can you make out anything? Is my 25th on July birthday. ये वर्ड्स पढ़ करके आपको समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है. Does these words convey any message? ये वर्ड्स कोई मैसेज हमें बता रहे हैं. They wish to convey some message. कुछ मैसेज हमें बताना चाह रहे हैं, but
इट इज नॉट एट ऑल क्लियर. ठीक है, अभी क्लियर मैसेज पाने के लिए हमको क्या करना होगा? वी विल हैव टू रीअरेंज द वर्ड्स. अभी ये जो वर्ड्स हैं इनको हमें रीअरेंज करके प्रॉपर सेंटेंस लिखना होगा टू नो व्हाट इज द एग्जैक्ट मैसेज. नाउ द करेक्ट सेंटेंस वुड बी माय, इसका आंसर इज माय बर्थडे. देखो, माय बर्थडे इज ऑन 25th July and then full stop. That means the sentence ends. यहाँ पे क्या है? फुल कैपिटल से भी नहीं स्टार्ट हुआ, फुल स्टॉप इज ऑल्सो नॉट देयर. सो वी start the sentence with a capital letter and end it with a full stop. So my birthday is on 25th July. मेरी बर्थडे 25th जुलाई को है. इससे that means what is a sentence? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस में आप बोल सकते हो कि उसमें वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स का कलेक्शन है. बट डू यू थिंक इट इज द कंप्लीट आंसर? अगर सिर्फ वर्ड्स का कलेक्शन है तो ये भी तो वर्ड्स का कलेक्शन है. इज माई 25th ऑन जुलाई बर्थडे, दिस इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. ये भी तो वर्ड्स का कलेक्शन है, लेकिन हमें ये कोई मैसेज नहीं कन्वे कर रहे हैं. वाई? बिकॉज दीज वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ मीनिंगफुल वे. मतलब वो ऐसे प्रॉपर ऑर्डर में नहीं अरेंज किए हुए हैं जिससे कि हमें कोई मीनिंग मिले. तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर एंड मीनिंगफुल ऑर्डर. मतलब सेंटेंस पे वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि उससे हमें मीनिंग क्लियर समझ में आए. ठीक है, दैट इज अ प्रॉपर सेंटेंस. फर्स्ट वन, दिस इज नॉट अ सेंटेंस, this one is a proper sentence. Okay, now let us see the second one. Second is DRESSED, dressed a fairy. Please vegetable come as. मतलब कुछ समझ में आ रहा है? बीच के एक वर्ड में कैपिटल लेटर आ गया, विच इज नॉट करेक्ट. सेंटेंस के बीच में हम कैपिटल लेटर कब यूज कर सकते हैं? ओनली व्हेन वी आर राइटिंग सम वंस नेम और सम प्लेसेस नेम. सेंटेंस के बीच में हम कैपिटल लेटर कब यूज करते हैं? जब हम किसी पर्सन का नाम या किसी प्लेस का नाम लिखते हैं. सो दिस इज नॉट करेक्ट. नाउ द करेक्ट सेंटेंस वुड बी PLEASE, please come dressed as a vegetable fairy. This is the correct sentence. Please come dressed as a vegetable fairy. This is the correct sentence. Third is many lots of and their games prizes are. Again this is not correct. कोई फुल स्टॉप नहीं है, बीच में कैपिटल लेटर यूज किया है. सिंस ये जो वर्ड है देयर, द फर्स्ट लेटर दैट इज टी इज कैपिटल, दैट मीन्स ये वाला जो वर्ड है ये सेंटेंस के एकदम बिगिनिंग में आएगा. दैट मीन्स इस वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा. सो देयर आर मैनी prizes and lots of games. All these sentences are from the invitation itself, children. These are not new sentences. ये कोई new sentences नहीं है. All these sentences are from the invitation. जो invitation है नेहा का, उसी invitation के ये sentences हैं.
Now children, I hope you all are writing along with me. Complete these sentences. I hope you have completed. But the invitation is still not complete. My birthday is on 25th July. Please come dressed as a vegetable fairy. There are many prizes and lots of games. 2 more sentences are there. I'm going to rub this. 2 more sentences are there. Then her birthday invitation would be complete. These are, fourth is baking, mummy, my is a big cake. Now again, M of this word my is capital. इसका मतलब है, it means that the sentence will start from this word क्योंकि ये capital है. So correct sentence would be my mummy is baking a big cake. My mummy is baking a big cake. And last sentence is, fifth one, a clown papa invited has as well. Again we can see that this word papa, इसमें जो P है that is capital. That means this word will come in the beginning of the sentence. ये कहाँ पे आएगा ये word? ये word जो है वो sentence के beginning में. That means the sentence will start from this word. So the answer would be Papa has invited. Papa has invited a clown as well. मतलब पापा ने एक क्लाउन को भी इनवाइट किया है. Has invited a clown as well means क्लाउन को भी इनवाइट किया है. Now when you read all the 5 sentences together, then you will see that the birthday invitation is complete. Now let me read the 5 sentences together now. My birthday is on 25th July. Please come dressed as a vegetable fairy. There are many prizes and lots of games. My mummy is baking a big cake. Papa has invited a clown as well. Now the invitation is complete and it is conveying a proper message. अभी ये जो invitation है, ये जो message है, ये complete है और इस मैसेज को पढ़ने से हमें ये समझ में आ रहा है कि नेहा अपनी बर्थडे के बारे में बता रही है. ठीक है. शी इज इनवाइटिंग हर फ्रेंड एंड टेलिंग हर फ्रेंड अबाउट हर बर्थडे पार्टी की, कैसे कब है उसकी बर्थडे, क्या क्या होगा बर्थडे में. ओके. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ नेक्स्ट इज राइटिंग योर ओन एड्रेस. ओके. How do you write your address? What is the proper way of writing your address? This I will explain in the next class. Today I will stop here only. अभी आज मैं सिर्फ verbally बताऊंगी. Like as we have read in the lesson that there are 2 ways of conveying a message. एक मैसेज अपनी बात बताने के लिए 2 तरीके हैं. या तो हम बोल के बता सकते हैं या हम लिख के बता सकते हैं. So today I will explain verbally. अभी मैं जस्ट वर्बल बताऊंगी. नेक्स्ट क्लास में हम उसको लिख करके मैं एक्सप्लेन करूंगी. देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग एन एड्रेस. एड्रेस को लिखने का एक प्रॉपर वे होता है. आप
एड्रेस में योर नेम शुड बी देयर, अगर बिल्डिंग है बिल्डिंग का नंबर होना चाहिए, हाउस है हाउस नंबर होगा, अगर कॉलोनी स्ट्रीट वॉट एवर इट इज, देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग इट. ऐसा नहीं है कि आप ऊपर नीचे कुछ भी जहाँ जो मन में आया लिख दिया. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल discuss how to write an address. Okay children, so today I will stop here only. Thank you so much.